again, I welcome you all in our second session of today, staying safe online. So, recognizing frauds and cybersecurity essentials. Hello, shall I continue, madam? Hello. Sir, you are audible. Please continue. Yeah. So, friends, our second session is based on the online frauds. So, mostly nowadays in our daily life routine, we are seeing a lot of different frauds can be dealt by fraudsters or by hackers, and these circumstances, our local peoples will be victimized of such kind of incidents. So let me clear first what is the online frauds. So online fraud simply refers to any deceptive activity conducted over the internet with the intent to steal the money, personal information, or access to digital assets. So it is often involved tricking individuals into revealing sensitive data or making payments under false pretenses. So characteristics of online fraud basically deception, digital medium, and financial or data theft. The fraudsters pretend to be someone's trustworthiness. This is a case of deception. In this case, mostly the bank or the government organizations or sometimes our friends may be victimized. Digital medium, they can be used like via emails, websites, social media, some messaging apps. Sometimes they have to use, or sometimes nowadays we can observe via phone calls or via video calls also. We suffer with these kind of online frauds. So financial or data theft, the basic goal is usually to steal the money, identity of the individuals or the persons or the any particular organizations, or to access the credentials. So these are the basic characteristics of online fraud. There are some common examples of online frauds. Mostly some of you may have heard earlier, or some of you may read in books, or some of you watch different kind of videos like phishing. In this case, fake emails or messages that trick you into clicking malicious links. And in this case, the example is here. You get an email from a bank asking to verify your account. Sometimes they can call you. So, sir, we are sending you the message. Your credit card is lapsed. Please review this. Just click on the particular link. We will review. That kind of case we have been observed. Second one is a QR code scam. Scanning a code that sends money instead of receiving it. A seller asks you to scan a QR code to receive or refund the money. Another one is one of the popular case, fake KYC update. Impersonation of banks asking for OTP or documents. So SMS claims your account will be blocked unless you update KYC. So that is one of the major incidents happen in the last 4 to 5 years via fake KYC update message. So another recent case, it has been observed that digital arrest scam. So fraudsters pose as a police or tax official demanding payment. A caller says you will be arrested unless you pay a fine immediately. Next one is here, search engine fraud. Fake customer care numbers appear in search result. You Google expired bank support and call a scam number. जनरली इस प्रकार के फ्रॉड में क्या होता है कि हम लोगों ने जैसे कोई ऑनलाइन अगर कोई डिवाइस या प्रोडक्ट परचेस किया है, जैसे मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, और उसमें फ्यूचर में मान लीजिए कभी कुछ अगर डिफॉल्ट आ गया या आपका सिस्टम ब्लॉक हो गया, तो हम क्या करते हैं, कस्टमर केयर को कॉल करते हैं. कस्टमर केयर को जब कॉल किया जाता है, कभी कभी वो नंबर बिजी आता है. सो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनके जो हेल्पलाइन नंबर्स है उसको हम अप्रोच करने की कोशिश करते हैं वाया सर्च इंजन. अब यहाँ पे
जो हेल्पलाइन नंबर्स है उसमें थर्ड पार्टी नंबर जो होते हैं, हैकर्स अपने नंबर कुछ पोस्ट करते हैं या कभी कभी जो हेल्पलाइन नंबर दिए हैं उसको डाइवर्ट करते हैं कॉल को। और ऐसे केस में जैसे आपने अपनी क्यूरीज उनको बताई, बताने के बाद इमीडिएटली वो बोलते हैं कि सर हम आपको ओटीपी सेंड करेंगे, आप इस पे रिस्पॉन्स कीजिए। और जैसे एज ए यूजर हम उस पर ओटीपी शेयर करते हैं, हमारे अकाउंट से इमीडिएट पैसे डेबिट हो जाते हैं। सो दैट इज द केस ऑफ सर्च इंजन फ्रॉड। एंड अनदर वन इज अ रोमांस फ्रॉड इज हियर। So in this case, some emotional manipulation to extract the money. So there is a different kind of examples. Someone you met online asks for help with a medical emergency. ये भी एक बहुत पॉपुलर स्कैम है। इसमें जैसे फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू हम लोग गाड़ी कई सारे अननोन लोगों से किधर है हेलो हेलो पढ़ना तो Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in this case, what happened? Earlier, people want to join a friendship with you, and it shows. Hello. Am I audible to all of you? मला आवाज येतो का मॅडम सर्वांना? सर 1 मिनिट मी त्यांना म्यूट करते 1 मिनिट. Yes, sir. Please continue. Right. So this is one of the very popular scam nowadays happen in the society that we call as a romance scam. In this case, the one can emotionally manipulate or forms a relation with any particular person, first of all, and later on, they let us try to extract the money from you by following some emotional intelligence. इस केस में क्या होता है कि कई बार जैसे सोशल मीडिया में हम लोग कई सारे अननोन लोगों से फ्रेंडशिप ज्वाइन कर लेते हैं। शुरुआत में ये लोग हमसे बहुत अच्छा फ्रेंडशिप बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, मॉर्निंग नून एंड नाइट में हमको कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करेंगे, मैसेज सेंड करेंगे, हमें लगता है कि ये हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। फिर कई बार जैसे इस केस में मोस्टली मेल फीमेल से कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है। फिर सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, वो आपको बोलता है कि आई हैव सम मेडिकल इमरजेंसी इन माय फैमिली and I am in urgency and I need a money for some medical emergency of my parents or my brother, sister, whatever it may be. या कभी कभी कहता है कि मेरे भाई का बहन का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे अर्जेंट पैसों की आवश्यकता है, आप मुझे पैसे भेज दीजिए। और ऐसे केस में हम लोग थोड़ा इमोशनली जुड़े होने के कारण हम लोग अननोइंगली इमीडिएटली उसके अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर देते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो दैट इज वन ऑफ द केस। So here is a simple statistics I have to show. The financial frauds happen till the year 2023 in all over the India. So if you observe this particular statistics, mostly in nearby area of Delhi, Gurgaon, Vienna places, there was a cases of extortion, online booking, ORS related, and in South, in Kolkata, it has been observed KYC expiry, Android banking malware, AEPS, electricity bill disconnection, and SIM boxes, call centers, etc. तो आप अगर ये स्टैटिस्टिक्स देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 6,000 के 24 केसेस है,
Customer care number, refund based fraud, KYC expiry, remote access 40%, AEPS fraud, biometrics cloning 8%, online booking, fake franchisee, QR code based 20%, Android mobile malware 8%, इन्वेस्टमेंट स्कीम जो आती है या हम लोग ऑनलाइन आजकल जो ट्रेडिंग करते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस हैं, टैक्स बेस्ड स्कैम और डिजिटल अरेस्ट, एफपीडेक्स स्कैम, illegal loan apps, unregulated lending, illegal gaming, trading apps, crypto scams, romance scams, and ransomware hacking others. So, am I audible to all of you? सर महाराष्ट्र में इतना कम है? मैडम ये जो स्टैटिस्टिक्स मैंने बताया आपको ये 2023 का है, रिसेंट का काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है ना? चेक statistics of 2023. So there are different types of frauds. Some of we are going to discuss for here. The very first one is the fake credit message fraud. Generally हम लोगों ने काफी सारे लोगों को हमारे नंबर पे या हमारे रिलेटिव्स में मैसेज आते हैं फेक क्रेडिट मैसेज, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड होता है। कई बार आपको सामने वाला व्यक्ति कहता है कि आई एम स्पीकिंग फ्रॉम सो एंड सो बैंक and I am a bank manager. Please share your CVV because your card will get lapsed. So for renewal, I require your CVV number. तो कई बार हम लोग क्या होता है कि जल्दबाजी में होते हैं, हमें लगता है कि नहीं ये लीगली बैंक मैनेजर ही बात कर रहा है और हम लोग अपना CVV नंबर शेयर कर देते हैं। क्या कभी कभी KYC से रिलेटेड भी मैसेज आपको आते हैं बैंक से, और ऐसे केस में फ्रॉडस्टर्स हमारे अकाउंट से मनी को डिटेक्ट कर लेते हैं। So that is the case of fake credit message fraud. So second is the friendship with strangers on Facebook or social media. In this case, now there are different type of cases happened earlier. Friendship with strangers में जैसे अभी मैंने आपको एक बताया कि मेडिकल इमरजेंसी का बहाना करके आपसे सामने वाला व्यक्ति पैसे की डिमांड करता है और हम उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और बाद में वो नंबर वो ब्लॉक कर देता है। ये हो गया। कई बार हमारे फेसबुक अकाउंट पर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे सारी डिटेल्स पोस्ट करते हैं, हमारा डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हमारी सारी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हमारा डिजिग्नेशन, या कई बार हम लोग जो आउटिंग के लिए जाते हैं, एक्सकर्शन के लिए बाहर घूमने जाते हैं, उस समय पर भी हम लोग हमारे फोटोज पोस्ट करते हैं। जो हैकर्स होते हैं ये हमें कंटिन्यूसली ट्रेस करते रहते हैं या हमारे सोशल मीडिया अकाउंट की रेकी करते हैं और उससे पता करते कि अभी ये व्यक्ति कहाँ पर है। सबसे पहले वो भी टारगेट डोमेन डिसाइड करते कि किस प्रकार के लोगों को हमें टारगेट करना है और उसी प्रकार से फिर ये सारा जो ऑपरेशन है वो डील करते हैं। इस केस में जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं आउटिंग के लिए गए हैं और आपने अपना फोटोग्राफ उसमें पोस्ट कर दिया है, तो क्या होता है कि ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हुए पिछले 2-3 सालों में कि जो हैकर्स या जो चोर है ये आपके घर पहुंच जाते हैं, आपके घर का सारा सामान जो भी एसेट्स बिलोंगिंग्स है वो सब चुरा कर ले जाते हैं। तो इसीलिए हमने फेसबुक पे भी हमारे जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, हमारी जो डिटेल्स है वो पोस्ट नहीं करनी चाहिए। फेक लोन एप्स के बारे में आई थिंक सभी को पता है। दिस इज स्पेशली हैपन विद द फार्मर्स। आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। तो कई बार हमें जो लोन से रिगार्डिंग बहुत सारे अलग अलग एप्स होती है, उसमें हमको रजिस्टर करने के लिए कहा जाता है और जैसे आप अपने डिटेल्स उसमें पोस्ट करते हैं, सामने वाला व्यक्ति आपसे बोलता है कि आप OTP शेयर कीजिए और इमीडिएटली आपके अकाउंट में पैसे जमा होने के वजह आपके अकाउंट से पैसे डिलीट हो जाते हैं। तो दैट इज द केस ऑफ फेक लोन ऐप। एक मोस्टली अगर आपने देखा होगा इन बिटवीन 2020 टू 23 ये सारे स्कैम बहुत ज्यादा हुए हैं, स्पेशली टेलीग्राम चैनल वर्क फ्रॉम होम फ्रॉड। आपको पता है कोविड पैंडेमिक में हम लोग सभी घर पे थे। उस समय में हमने काफी सारे एकेडमिशियंस हेलो am I audible? Yes sir, yes sir. So in this case we observed जो हमारे एकेडमिशियंस हैं, हम लोग जनरली कम्युनिकेशन पर्पस के लिए टेलीग्राम चैनल का यूज करते थे, या कई बार लोगों ने क्या किया वर्क फ्रॉम होम जो है, वर्क फ्रॉम होम के लिए कई सारे
अलग अलग एप्स या सर्विसेज यूज की, उस समय पर भी काफी सारे लोग इसके विक्टिमाइज हुए हैं। टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमारे सारे अकाउंट्स की डिटेल्स ये पहले ट्रेस आउट कर लेते हैं, हमारे नंबर्स चले जाते हैं और बाद में ये 1-to-1 हमको रैंडमली कॉल करते हैं और अलग अलग प्रकार हमारे अकाउंट से फ्रॉडस्टर्स मनी कर लेते हैं। सो दैट इज द वन थिंग। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया फेक हेल्पलाइन नंबर्स फाउंड ऑन गूगल, ये भी एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है फेक वेबसाइट ऑफ सर्च इंजिन्स लाइक गूगल एक्सेट्रा। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया है। कभी भी अगर आपको जो पर्टिकुलर वेबसाइट्स है ये ऑथेंटिकेट है या नहीं अगर चेक करना है, तो आप सबसे पहले उसके यूआरएल में चेक करेंगे कि उसके शुरुआत में यूआरएल में HTTPS लगा हुआ है या नहीं। अगर HTTPS है, इसका अर्थ है कि पर्टिकुलर वेबसाइट ऑथेंटिकेट है और सिक्योर है। अदरवाइज इफ यू ऑब्जर्व इन द यूआरएल HTTP only with the site name, then let us check the authenticity of that particular। तो कई बार ये फेक वेबसाइट भी हो सकती है और जिसमें हम लोग उसके विक्टिम हो सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी हमने रिसेंटली ऑब्जर्व की है, न्यूड वीडियो कॉल्स फ्रॉड। ये जनरली यंगस्टर के साथ बहुत ज्यादा होता है। सामने वाला पर्सन मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, आपको डायरेक्टली वीडियो कॉल करता है, जिसमें नेक्स्ट जो कॉलर होता है मोस्टली फीमेल होती है और वो न्यूड इमेज में अपना फोटो पोस्ट करके या वीडियो पोस्ट करके आपसे कॉल पे बात करती है। कई बार हम में से जो यंगस्टर्स हैं कई बार इमोशनली इंटेलिजेंस का यूज करके ट्रैप आउट हो जाते हैं, या जैसे हनी ट्रैप एक एग्जांपल है इससे रिलेटेड जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सामने वाले व्यक्ति से बातचीत शुरू कर देते हैं एज अ क्यूरियोसिटी। उतने ड्यूरेशन में वो आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस या डिवाइस का आईपी एड्रेस ट्रेस कर लेता है, या मान लीजिए आपने इमीडिएटली अलर्ट पे अगर मान लीजिए कि उसको ब्लॉक कर दिया या मोबाइल ऑफ कर दिया, उसके बाद भी ये लोग क्या करते हैं, आपकी वीडियो कॉल पे जैसे ही आप उसको रिसीव करते हो आपका इमेज उसमें कैप्चर कर लेते हैं, फिर आपका जो फोटो है उसको मार्क करके किसी भी ऑप्शन साइट्स में या डार्क वेब में किसी भी अलग अलग साइट्स में आपकी मार्क की हुई फोटो का किसी न्यूड बॉडी के साथ में पोस्ट पेस्ट कर देते हैं और फिर आपको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। अब जो ब्लैकमेलिंग का जो प्रकार हमने साइबर क्राइम में देखा, कई बार आपको फाइनेंशियल डिमांड्स होती है, अदरवाइज फिजिकल एक्सटॉर्शन के लिए भी आपको टॉर्चर किया जाता है, या कई बार जो टेररिस्ट होते हैं ये आजकल डायरेक्टली क्राइम नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, हम जैसे जो सिंपल लोग होते हैं उनका यूज करके हमको एज ए स्लीपर से थर्ड वो सबसे पहले मेंटली टॉर्चर करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और हम लोगों से जो इलीगल एक्टिविटीज है वो सारे करवाने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें ये न्यूड वीडियो कॉल्स का यूज किया गया है। फेक फोन कॉल के बारे में शायद आपको पता ही होगा। कई बार आपको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे मोस्टली सैटरडे संडे या हॉलीडेज के समय पर जनरली फेक फोन कॉल्स हमें आते हैं। सो व्हेनेवर सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको सभी को। एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर, यस फ्रेंड्स। जब भी आपको किसी अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है, सो यू डोंट रिसीव दैट वीडियो कॉल्स, सो इट इज वेरी रिस्की। अगर आपके फ्रेंड्स है या आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई पर्सन है तो आपको इंडिविजुअली वीडियो कॉल करेगा तो आपका नंबर, उसका नंबर आपको दिखाई पड़ेगा उसको, आप इजीली उसको रिसीव कर सकते हो। अदरवाइज डोंट टेक एनी रिस्क, डोंट रिसीव एनी अननोन वीडियो कॉल्स। सो नेक्स्ट वन इज यार ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑनलाइन सेल्स। कई बार ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन सेल्स में हमारी डिटेल्स अलग अलग साइट्स पे हम लोग फिल कर देते हैं। अब हैकर जो है गूगल से हमारे सारे डिटेल्स पहले ट्रेस कर लेते हैं और हमारे नंबर का यूज करके, जैसे अपने फेसबुक अकाउंट से भी कभी कभी अपना अकाउंट हैक कर लेते हैं, या जनरली अभी रिसेंटली कुछ केसेस हुए जिसमें हमारा व्हाट्सएप अकाउंट भी हैक होने लग गया है। आपका अकाउंट हैक होने के बाद में आपके जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप है
उसके नंबर्स ये पहले ट्रैप कर लेते हैं और बाद में 1 to 1 पर्टिकुलर पर्सन को कॉल करते हैं। अब जो कॉल जाएगा वो आपके नाम से जाएगा या मैसेज जो भी जाएगा वो आपके नाम से जाएगा और आपको ये सब चीजें पता ही नहीं होती। और कई बार आपसे अलग अलग तरीके से आपके फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर्स को ये मनी के लिए भी डिमांड करते हैं। So that is the case of this particular। या ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन सेल्स में और एक ऐसा भी इंसिडेंस दिखा गया है कि कई बार हम लोग कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन जब डिमांड करते हैं उसके लिए पे ऑफ करते हैं, तो उसके लिए हमने ऑथेंटिकेट जो साइट्स है या ऑथेंटिकेट जो सर्विसेज है उन्हीं से ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए। कई बार ऐसा दिखा गया कि ये फ्रॉडस्टर्स जो है फेक साइट्स का या डमी साइट्स की क्लोनिंग करके उसका यूज करते हैं और हम लोगों को एज अ विक्टिमाइज हमारा फाइनेंशियल लॉस उसमें हो सकता है। नेक्स्ट इज देयर फ्रॉड थ्रू स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन। जैसे कि अभी हम लोग लाइव इसको देख रहे हैं। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो Yes, हेलो sir. फ्रेंड्स। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी जैसे हम लोग जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेबएक्स, सो दिस इज वन ऑफ द सिक्योर्ड ऐप। वेबएक्स हो गया या माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया, ये काफी सिक्योर्ड एप्लीकेशंस हैं। इसमें जनरली हैकर्स हमारे यूजर को ट्रैप नहीं कर सकते हैं या हमारे कम्युनिकेशन को ट्रैप करने के चांसेस काफी कम है। इट्स अ हाईली सिक्योर्ड। लेकिन अगर ऐसे ही कुछ वर्चुअल एनी डेस्क आता है आपको, या टीम व्यूअर नाम का एक ऐप आता है, आपने सुना कभी टीम व्यूअर एनी डेस्क? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस सर, यस। कई बार हम लोग क्या करते हैं ऑनलाइन में हमारा डेटा शेयर करने के लिए डेस्कटॉप शेयर कर देते हैं। एनी डेस्क नाम का एक ऐप आता है या टीम व्यूअर नाम का ऐप आता है, या थोड़ा और पहले कोविड पैंडेमिक में हम लोगों ने सभी ने गूगल मीट यूज किया था। सबसे ज्यादा हमने जूम ऐप यूज किया था, आप सभी की जानकारी में। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर विद दिस वन, जूम ऐप। यस सर, नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Zoom is not secure. So Zoom is not a app designed by our Indian government. It was a app monitored by and designed by the China। तो कुछ बहुत सारे ऐसे चाइनीज ऐप हमने उस समय पर यूज किए जिसके थ्रू हमारे सारे नंबर्स डिटेल्स उनके पास चले गए। हमारे काफी सारे कम्युनिकेशन भी उन लोगों ने ट्रैप आउट कर लिए। तो कभी कभी हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशनल डेटा या इंडिविजुअल डेटा ट्रेस करने के लिए सारी चीजों का यूज किया जाता है। सो दैट इज द केस ऑफ फ्रॉड थ्रू स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन। तो जब भी आपको कोई डिमांड करता है कि प्लीज शेयर योर स्क्रीन, तो अपने कभी भी ऑथेंटिकेट एप्लीकेशन का यूज करना चाहिए और इमीडिएटली कभी भी अपना स्क्रीन शेयर नहीं करना चाहिए। सो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट अभी हॉट टॉपिक शुरू है, इसको हम कहते हैं फ्रॉड थ्रू एसएमएस फॉरवर्डर और एपीके फाइल। एपीके फाइल मैसेज सर्कुलेशन जनरली अभी अभी रिसेंटली हमारे कॉलेज में हमारे स्टूडेंट ग्रुप में भी सर्कुलेट किया गया था। हमारे एक स्टूडेंट का नंबर हैकर्स ने ट्रैप कर लिया था और उसके अकाउंट में इसने एपीके फाइल सेंड किया था और एसबीआई के नाम से एक मैसेज सेंड किया था कि एसबीआई आपको एक फ्री स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च है या फ्री में लैपटॉप सर्कुलेट करने वाला है, तो प्लीज रजिस्टर दिस पर्टिकुलर डिटेल्स। और उसमें एक फाइल दिया था एपीके फाइल। तो जैसे आप एपीके फाइल को क्लिक करते हैं उससे क्या होता है कि आपका डिवाइस आईपी एड्रेस या आपका लैपटॉप या कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ट्रेस आउट हो जाता है और उतने टाइम स्पैन में हमारे डिवाइस के सारे क्रेडेंशियल्स, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये लोग ट्रेस आउट कर देते हैं और बाद में उसको मॉर्फ करके उसको मिसयूज कर सकते हैं। हमारे पासवर्ड्स, हमारे बिलोंगिंग्स, और उसके थ्रू हमारे बैंक से भी पैसे डिडक्ट हो सकते हैं या कई बार फिर ये लोग हमको फ्रॉड कॉल्स करके उसको ट्रैप करते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द incidents happened recently in various domain of the country। कार्ड स्कीमिंग डिवाइस और कार्ड रिप्लेसमेंट, ये आपने काफी बार देखा होगा। जैसे पहले एटीएम मशीन पर कार्ड स्कीमिंग होता था या पेट्रोल पंप पर कार्ड स्कीमिंग या कार्ड रिप्लेसमेंट मैकेनिज्म यूज होता था। अभी काफी सारा इस पे कंट्रोल आ गया है, लेकिन कई सारे स्टेट्स में अभी भी ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो जब भी हम लोग एटीएम मशीन में
मनी विड्रॉइंग के लिए जाते हैं, सबसे पहले जैसे हम कार्ड स्क्रैच करते हैं उसके पहले हमने वहां पर चेकआउट कर लेना चाहिए कि वहां कहीं सेंसिटिव क्लोनिंग मैकेनिज्म तो अटैच नहीं है, हमने उसको वेरीफाई कर लेना चाहिए। डेटा थ्रेफ्ट फ्रॉम चार्जिंग एंड केबल वाईफाई, नाउडेज different kinds of botnets or spy apps or EXEs can be plugged in with the any kind of USBs or the Wi-Fi cables which we are using in the social cables. जैसे कि हम लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं या रेलवे स्टेशन पे हम लोग वाईफाई केबल चार्जिंग केबल्स यूज करते हैं जो कि वहाँ ऑलरेडी प्लग इन होते हैं, तो इसके थ्रू भी हमारे सिस्टम में वायरस आ सकता है। क्रिएटिंग फेक फेसबुक एंड सोशल मीडिया अकाउंट, हाँ ये अभी भी रिसेंटली काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें हमारा ही अकाउंट या किसी बड़े फेमस पर्सनैलिटी का फेक अकाउंट जनरेट किया जाता है और उसके थ्रू फिर मनी की डिमांड्स होती है उसके फ्रेंड्स को या रिलेटिव को, तो ऑल ऑफ सडन इमरजेंसी है करके हम लोग इमोशनली अपने फ्रेंड्स को इमीडिएटली मनी ट्रांसफर कर देते हैं। दैट इज द अदर मेजर लाइफ पार्टनर डेटिंग ऐप। कई बार आपने देखा होगा मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं, लाइफ पार्टनर डेटिंग के लिए अलग अलग ऐप्स यूज की जाती है। इसके संदर्भ में कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो एनआरआईज होते हैं, कई सारे फैमिली मेंबर्स देखते हैं कि लड़का या लड़की अगर अब्रॉड में वर्क कर रहा है तो वो उसकी डिटेल्स उस पर पोस्ट करता है सोशल मीडिया अकाउंट पे, मैट्रिमोनियल साइट्स पे, और हम लोग उसको विदाउट वेरिफिकेशन उनसे कम्युनिकेट कर लेते हैं और आगे की सारी कार्रवाई हम लोग कर लेते हैं। फिर कभी कभी ये लोग हमसे कुछ इमोशनली ब्लैकमेल करके या हमारा जो बिलोंगिंग्स है, या कई बार ऐसा भी होता है कि इमरजेंसी में आपसे वो मनी की सामने वाला है और हम लोग उसको सेंड भी कर देते हैं। So that is the case with the life partner or dating app. So fraud by roaming in cities and villages, nowadays it could be happen. So again one important thing is there beware of fake notice and documents. कई बार हमारे मोबाइल पे बहुत सारे इमोजीज या बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नोटिसेस या लिंक आती है, so never click on these kind of links without verification or the authentication of that particular details. और अभी एक रिसेंटली जो केस हो रहा है मैक्सिमम वो है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट इज न्यू ट्रेंड ऑफ साइबर क्राइम, we'll discuss now in further. I'm audible to all of you? Yes, Yes, sir. Okay. तो आप यहाँ पिक्चर पे देख पा रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है। सबसे पहले जो विक्टिम है उससे कांटेक्ट किया जाता है। अब इसमें भी दो प्रकार से है। पहले कई बार ऐसा होता है कि आपको अब्रॉड के नंबर्स आते थे, मोस्टली फ्रॉम 92 सीरीज फ्रॉम पाकिस्तान, या कई बार जो फ्रॉडस्टर्स है अगर इंटरनेशनल फ्रॉड तो किसी और नंबर से आएगा आपको, अदरवाइज अगर इंडियन लोकल्स है तो इंडियन नंबर से भी आपको कॉल किया जाता है। जैसे कॉल्स वुड बी यूज्ड फॉर द victimization, well from parcel services, or sometimes it could be from CBI, sometimes from Reserve Bank of India, or from NIA, or ED, or Narcotics Control, or sometimes the call from the any other banks. अब वो आपसे अलग अलग प्रकार की जो केस रिव्यू हिस्ट्री आपको बताती है। अब इस केस में जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाएगा कि आई एम फ्रॉम नार्कोटिक्स और आई एम फ्रॉम एनआईए। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको एक फेक पुलिस ऑफिसर जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम में आपसे बात करता है और वो बताता है कि आई एम पुलिस कमिश्नर फ्रॉम दिल्ली पुलिस और फ्रॉम मुंबई पुलिस एंड आई गॉट डिटेल्स ऑफ योर वार्ड और योर फैमिली मेंबर्स एंड ही और शी विल बी identified in these kind of scams. तो कई बार फैमिली मेंबर्स डर जाते हैं और थोड़ा सा अर्जेंसी में होने के कारण इमोशनली वो सामने वाला व्यक्ति आपसे बोलता है कि हम लोग इसको आपका सोशल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए करके केस को यहीं पर हैंडल करेंगे, इसके लिए आप हमको कुछ अमाउंट हमारे अमाउंट अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। तो कई बार पेरेंट्स को शेयर भी कर देते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द केस ऑफ फेक पुलिस ऑफिसर। अब इसमें एक जो स्लाइड मैंने दिखाया है
बहुत सारे स्काइप अकाउंट्स होते हैं जिसमें क्रिप्टो करेंसी है, फिजिकल गोल्ड, हवाला, कैश विड्रॉल फ्रॉम ब्रांचेस, एटीएम विड्रॉल, डोमेस्टिक ओवरसीज एंड ओपीजीएसपी और इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर। तो ये जो फ्रॉडस्टर्स है, जब इंटरनेशनल लेवल पे जब कोई फ्रॉड करते हैं तब अकाउंट मनी ट्रांसफर के लिए ये सारे मैकेनिज्म का यूज यहाँ पर करते हैं। अभी एक रिसेंटली एक नया एक इंसिडेंस हुआ है। डू यू नो अबाउट दिस वन, साइबर स्लेवरी? एनीबॉडी? नो सर, नहीं नहीं। ये एक नए प्रकार का स्कैम है जिसमें ह्यूमन ट्रैफिक इंसिडेंट्स काफी ज्यादा हो रहे हैं। जो मैंने इस स्लाइड पे दिखाया आपको, देखिए यहाँ पर जैसे इन दिनों विदेश में नौकरी की करने के लिए नौजवानों का सपना बन जाता है, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आपको जैसे फॉरेन में कहीं जॉब देने की ऑफर की जाती है और हम लोग जो डिटेल्स है उसको फिलअप कर देते हैं। फिर सामने वाली कंपनी या सामने वाला व्यक्ति आपको फॉरेन में पर्टिकुलर कंपनी एड्रेस पे कॉल करता है और उसके बाद में आपसे रॉन्ग बिहेव करवाता है। या कई बार ऐसा हो जाता है कि डिजिटल अरेस्ट, ई ट्रेडिंग फ्रॉड, डेटिंग ऐप फ्रॉड, साइबर बुलिंग जो है, या इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ऐसी है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। साइबर बुलिंग कि जैसे आपकी डिटेल्स उस व्यक्ति के पास में आ गए, तो फॉरेन में आपको बुलाने के बाद में आपसे फिजिकल एक्सटॉर्शन के भी केसेस होते हैं, या कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी केसेस हुए। जैसे कि इसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी जो होती है, साइबर अपराध भी जो होती है, डिजिटल जबर को इसमें कैप्चर करते हैं। और कई बार हमको जॉब का ऑफर देके क्या करते हैं कि इंटरनेट स्कैमिंग करते हैं, कभी कभी हमारा डेटा चुरा लेते हैं, या ऑनलाइन फ्रॉड भी होता है हमारे साथ। या कई बार ऑप्शन जो कंटेंट्स है वो भी किसी फीमेल पर्सन से बनाए जाते हैं और आपको जो इलीगल एक्टिविटीज है या बहुत सारे ऐसे जो इंसिडेंट्स है उसमें आपको कल्प्रिट बनाया जाता है। साइबर स्लेवरी कैसे काम करता है, जैसे यहाँ पर दिया है, कई सारे आपको ऑफर्स दिए जाते हैं, जॉब ऑफर्स दिए जाते हैं हाई सैलरी के, या फॉरेन में आपको बुलाकर या उनके दस्तावेज these are the cases किया जाता है और उनको प्रेशराइज किया जाता है। कई बार ब्लैकमेलिंग के भी केसेस होते हैं, हिंसा के भी केसेस होते हैं। अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो उस पर शारीरिक हिंसा या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है। तो दिस इज द केस ऑफ साइबर स्लेवरी। सिंपली इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू ऑनलाइन स्कैम्स और फ्रॉडलेंट एडवर्टाइजमेंट। Am I audible to all of you? Hello. Yes, sir. Sure. So the next case is here digital arrest. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताया था। So digital arrest is a form of cybercrime where scammers impersonate official from law enforcement agencies, just like CBI, ED, or from the police, and claim the victim is involved in serious crimes like money laundering or narcotics trafficking, and they create a fear psychosis and arrest the victim digitally by forcing them to stay on video calls while extorting money under the pretense of avoiding physical arrest. So there are different examples I have mentioned earlier. Businessman SP Oswal flipped off 7 crore after being misled into believing he was involved in a fraudulent case. There is a case of scientist who he lost 71 lakhs after he had and his wife were placed under digital arrest for 6 days. And Bengaluru lawyer extorted by 14 lakhs and subjected to a fake narcotics case during the digital arrest. ऐसी एक केस अभी पिछले महीने मुंबई में हुई थी, जिसमें मुंबई में जो पुलिस कमिश्नर है विश्वास नागरे पाटिल, इनका इमेज क्लोन करके
जो फ्रॉडस्टर्स है उन्होंने कॉल किया था एक फैमिली को और उनको बताया था कि उनकी बेटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास इलीगल एक्टिविटीज करते हुए पकड़ी गई करके, और उनसे मनी की डिमांड की गई नियर बाय 50 lakhs। अब पेरेंट्स ने इमरजेंसी में उनसे डील करने के लिए मनी ट्रांसफर करने के लिए वो लोग रेडी भी हो गए थे, लेकिन तभी क्या हुआ, लड़की का अपने पेरेंट्स को कॉल आ गया जबकि लड़की बैंगलोर में आईटी कंपनी में जॉब करती। तो ये इंसिडेंट्स होते होते पेरेंट्स बच गए। कई बार ऐसा भी होता है में हम लोग अननोइंगली सामने वाले व्यक्ति को रिस्पॉन्स दे देते हैं और हम लोग विक्टिमाइज बन जाते हैं, जिसमें हमारा बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर, so data multiple such scams have been reported in various states with significant financial loss. So what are the consequences of digital arrest? सबसे पहला होता है फाइनेंशियल लॉस। कई बार हमारा बहुत बड़ा फाइनेंशियल हमारा लॉस हो जाता है। मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हैं हम लोग। विक्टिम फेस इमेंस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ऑफन लीडिंग टू डिप्रेशन एंड सुसाइडल टेंडेंसीज and trust erosion. The prevalence of these scams erodes public trust in online platforms and even government. तो हम लोगों को इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए और इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। So these are the challenges for government: lack of awareness, cross-border operations, use of deepfake technology, and inadequate cybercrime laws. जनरली अभी स्कैमर्स क्या कर रहे हैं कि एआई का यूज करके कई बार डीपफेक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जैसे इसमें आपने देखा होगा एक केस स्टडी है। जस्ट आई वांट टू शो दिस पार्ट। होल्ड ऑन। ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? Yes, sir. हाँ, इसमें देखिए जैसे एक मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुणे पुलिस ने एक रैकेट को ट्रैप किया था रॉन्ग पॉलिसी शो करके। कई बार आधार कार्ड पैन कार्ड थेफ्ट का भी आपने देखा होगा एग्जांपल। और यहाँ एक मैंने आपको दिया है, एस्पायरिंग एक्टर शुड बी अलर्ट एंड नॉट गेट फूल्ड बाय फेक कास्टिंग कॉल्स जर्नल पिक्चर। अभी एक 6 महीना पहले केस हुआ था जिसमें रश्मिका मंदाना का एक रॉन्गली मिसइंटरप्रेटेड न्यूड वीडियो जनरेट किया गया था और वो सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया था और एक्ट्रेस काजोल के साथ में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था, जबकि पर्टिकुलर एक्ट्रेस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब एक रिपोर्टर उनके पास इंटरव्यू देने गया और उनसे पूछा गया क्या आपने इस प्रकार का वीडियो जनरेट किया है, तब उनको काफी बड़ा शॉक पहुंच गया। ये देखिए स्लाइड में दिख रहा है आपको। तो कई बार ऐसे भी होता है कि आपका फोटो या इमेज को मॉर्फ करके डिफेक्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके भी तो जनरेट किया जाता है। अभी एक केस स्टडी थी हमारे लिए फोटो मॉर्फिंग, डिफेक्ट्स और मिस इन्फॉर्मेशन का। अभी इलेक्शन में जैसे यूएसए में जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने भी एआई और डीपफेक टेक्नोलॉजी का यूज किया था वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए। मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स के बारे में थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया। तो इसमें हमें हमेशा क्या करना चाहिए, लेट अस चेक द authenticity of the particular matrimonial websites and then create your email account on the authenticate site. अगर आप इसमें विक्टिमाइज हो रहे हैं, सबसे पहले आपने अपने फैमिली मेंबर्स को इसकी डिटेल्स कम करनी चाहिए। So if anybody will ask you meet me, so in that case you have to meet the next fellow in the public places and ask enough questions so that you can get the details of the particular person, whether he or she will be a authenticate fellow or not. What are the information shared by the next person is authenticate or not, you should check. Then and only then you have to follow the trust of a particular person. Do not share personal information with your
newly joined friends. Never share your sensitive personal photographs to the any person when you join on social media or when you form friendship via matrimonial sites. So never entertain any request for money from the particular person, as we have already discussed. And a very important thing is here, be cautious while dealing with the NRI profiles. So that is very risky nowadays. So how to detect fraudsters on matrimonial website? So you have to follow these guidelines to identify the particular person. Person is reluctant to come on video chat or meet in a person, she can be a fraudster, as the profile picture posted on matrimonial websites may not be of his or her. जब भी आपको कोई पर्सन वीडियो कॉल करता है, आपने पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लेनी चाहिए. A fraudsters may express his or love in just a short span of acquaintance, so then it could be a doubtful situation. So fraudsters will usually call from multiple numbers, or he or she usually don't give a number to call back. Even if he she give a number, they don't pick up when you call. Later he she calls you back from a new number. If a person inquires about your financial status, or they try to attempt to identify all your belongings in a very few meetings or in the initial stage of interactions, a fraudsters may not have a social media profile or have a few friends on social media, so then it could be a doubtful case. ऐसे केसेस में हमने सामने वाले व्यक्ति पे टोटली नहीं करना चाहिए. There are some layers of cyber protection. साइबर प्रोटेक्शन के लिए हमने कई सारे अलग अलग एक्टिविटीज है, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. एक बार शॉर्टली रिकॉल कर देते हैं. यूजर अवेयरनेस अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ स्कैम्स. वी हैव टू एजुकेट द पीपल. Strong password authentication, two-phase authentication, secure device and networks we have to follow. We need to install software updates and patch management and incident response and monitoring. Am I audible to all of you? Hello. Yes, sir. You are audible, sir. So how to protect yourself from online identity theft? So there are different kinds of attempt can be deal by fraudsters like phishing and cloning. Fraudsters क्या करते हैं, हमको कॉल करते हैं and claiming to be from a bank or asking for money. Phishing में scammers हमें क्या करते हैं, they have to send deceptive malicious emails to your credentials. Cloning में offenders can clone your credit card, debit card and information. ये सारे चीजों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही जानकारी दी है. इस स्लाइड आपको रिकॉल करने के लिए यहाँ पर रखी हुई. Just read that. Next, how the fraudsters will identify our theft. For that, we have to make all these precautions. We should have to use the limited use of social media accounts, and let it be try to post a very few information on your social media account. So limit use of personal information in social networking sites so that the people try to monitor your financial accounts for suspicious activity on a regular basis. Check all your online accounts and social networking accounts for any unauthorized use. Always be aware of onlookers when using your credit debit card and entering your PIN in a ATM or online transaction. Use security features provided by all websites. Do business online with trusted companies or websites only. Let us check whether they have a SSL mechanism or not. Password protect all documents sent if you are working in some confidential organization or in some authenticate organization. Whenever you want to send some confidential information to any particular source. Always read and check privacy policies of the concerned organization. Do online shopping only through sites that uses secure payment gateways mechanism. And take immediate action if you think your personal information has been misused by someone. So for that, you have to immediately contact with
this helpline number 1930. So this is example of trolling. Here is the picture of hacking. Anyone who uses a computer connected to the internet is susceptible to the threats that computer hackers and online creators pose. जनरली हैकर्स ये सारी टेक्निक्स इसमें यूज करते हैं. इसके लिए हमारे पास जो सेफगार्ड्स है वो इस प्रकार से होनी चाहिए. We have to use a two-way firewall with extreme caution when entering chat rooms. Limit the personal info you post online. You have to post online. So again, you have to increase the browser security settings. Keep personal and financial information out of online conversations mostly. And always carefully monitor requests by online friends for predatory behavior. So these are some precautionary measures to prevent ourselves from any frauds. In this diagram, we can simply find the cases of sexting. Never take and send an image of yourself under the pressure to a stranger. This is especially for females. Never forward, copy, transfer, download, store, transfer, or share explicit images to any person or the friends. Block individuals who make you feel uncomfortable about how they talk to you. And if you identify your obscene images at any social media places, so you have to report the explicit content that you receive immediately to the website owner or social media sites. Otherwise, you have to file complaint to cyber sales immediately. Consider to dial 100 if your private photos are being circulated in the social media account, or if you observe your marked photo will be circulated in the social media. Can also report anonymously to cybercrime department also. For that, you have to follow this particular address, cybercrime.gov.in. Cyberbullying we had already discussed. Just read these particular things. For cyberbullying, be empathic towards other people in cyberspace and respect their boundaries. If you victim, collect evidence and talk to the trusted end users. This will ensure mental support and help. इसमें स्पेशली एक इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे आपको कोई भी अगर अननोन नंबर से वीडियो कॉल आते हैं तो सबसे पहले आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहिए एज ए एविडेंस. फ्यूचर में अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का अगर फ्रॉड होता है आपके पास उसका एक एविडेंस सेव रहेगा. So talk to the trusted adult, save the evidence, block the bully, report the bully, help your friend who is bullied, and don't respond to any unknown strangers. This is a sign of cyberbullying. So these are the safeguards we have to follow for the monetary scams. These are we are already discussed all these things earlier. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि beware of ad that display messages like loan approval guaranteed. कई बार हमारे मोबाइल पर इस प्रकार के मैसेजेस आते हैं. अभी रिसेंटली ई चालान का कई बार लोगों को मैसेज आना शुरू है. आप में से किसी को आया था क्या ई चालान का मैसेज? हेलो, एम आई ऑडिबल? Sir. Yes, sir. So don't respond on any of such messages. और अभी कभी भी आपने ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे जब भी इस प्रकार का कोई मैसेज आता है ऑथेंटिकेट सर्विसेज से तो उसके आगे डैश और एस लगा रहता है. अगर डैश और एस लगा है इसका अर्थ है कि सिक्योर है. अदरवाइज इट इज अ very risky to give response on that particular. Sometimes someone will demand for the money before for insurance or processing is not credible.
जनरली अभी कई बार ऐसे फेक कॉल्स आते हैं आपको कि अगर आपका इंश्योरेंस अकाउंट होगा किसी पर्टिकुलर फॉर्म का LIC या कोई हो, तो आपको आपके नंबर से टैग करके कॉल करते हैं और कई बार आपका उसमें आपको पे ऑफ करने के लिए ऑफर करते हैं कि आप इस नंबर पे पेमेंट कर दीजिए। और कई बार हम लोग ऐसे स्कैम में विक्टिमाइज हो जाते हैं। So fraudulent call, send messages and emails to people in need or urgent monetary help. These interactions are most often scam. डिजिटल पेमेंट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। फेक लोन्स कॉल के अंदर डिस्कस कर लिया है। So all these guidelines we have to follow for cyber vigilance. These are the golden rules to follow online. Do not give out personal information. Do not share inappropriate pictures with anyone. Remember, not everyone online is who they say they are. Avoid opening emails or attachments from strangers. Do not react when cyberbullied. Instead, block. Keep a record and report it. Never arrange to meet someone in person whom you meet online. Am I audible to all of you, friends? Yes. Yes. Yes, sir. These four things you should be very much conscious: strong password, multi-factor authentication, software updates, and backup of the data. And nowadays, we are facing the emerging trends in cyber crimes, that is AI powered. अभी रिसेंटली जो मैंने केस स्टडी कल डिस्कस की थी आपसे, रशिया और यूक्रेन की, और एक सबसे इम्पोर्टेंट था इजराइल और हमास का। इजराइल ने हमास की डिफेंस सिस्टम को कोलैप्स करने के लिए सबसे पहले उनके जितने भी व्हाट्सएप या स्मार्टफोन थे, हमास ने क्या किए थे कि उनके सारे जो स्मार्टफोन्स है वो डिमोलिश कर दिए थे और उन्होंने पेजर नाम का डिवाइस यूज किया था कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन के लिए। डू यू नो द डिवाइस पेजर? एक 15-20 साल पहले हम लोग उसको यूज करते थे मैसेज कम्युनिकेशन के लिए, पेजर नाम का डिवाइस। Am I audible to all of you? Yes, sir. I know, sir. तो इजराइल ने क्या किया, Yes. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ये सारे जितने भी हमास के जो डिफेंस ऑफिसर्स थे उनके सारे लोगों के नंबर ट्रेस किए और पेजर के थ्रू एट अ मोमेंट ऑफ टाइम सभी जगह पर एक ही समय पे ब्लास्ट करवाया, जिसमें उनके काफी सारे जो टॉप कैडर के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको लाइफ इंजरी हो गई थी। ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ और अभी जितने भी बड़े वॉर होने के चांसेस हैं वो साइबर वॉर हो सकते हैं। सो दैट इज अ AI पावर अटैक। इसमें डिजिटल अरेस्ट का भी एक लोकल एग्जांपल हमने देखा था। डीप फेक टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अभी यूज हो रही है और IoT सिक्योरिटी से रिलेटेड भी कई सारे चैलेंजेस हमारे लिए अभी हैं। सो दैट इज आल्सो द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। एंड साइबर वॉरफेयर जो अभी मैंने आपको बताया, साइबर अटैकिंग जो मिलिट्री ऑफिशियल्स की डिटेल्स आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफेंस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए जनरली ये सारे ट्रेड्स का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें एक बात मैंने बताना भूल गया, तो हैकर्स है एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम लोग हनी ट्रैप कहते हैं। डू यू नो अबाउट हनी ट्रैप? आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. हेलो। Yes, sir. हनी ट्रैप जनरली जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, डिफेंस में यूज होता है, सर। यस सर, या जो बड़े रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं उनसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थेफ्ट करने के लिए किसी क्लाइंट को आपके पास भेजेंगे, किसी वुमन को आपके पास भेजेंगे और फिर आपसे फ्रेंडशिप फॉर्म करके वो आपसे डिटेल्स देने की कोशिश करती है। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। अगर आपको पता होगा, अभी पिछले 6 महीना पहले महाराष्ट्र में पुणे का इंसिडेंस है जहां पर हनी ट्रैप का यूज करके एक पाकिस्तान की एक लेडी ने एक बहुत बड़े रिसर्च साइंटिस्ट से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पूरी जानकारी उससे पता कर ली थी। आपको पता है इस बारे में?
ऐसे कई सारे incidents होते हैं. I know, sir. So we should be very much conscious about this. It happens many times. Yes, sir. It happens many times. Yeah, correct. राजस्थान में भी हुआ था सर ऐसे Yes. हनी ट्रैप. So this is from my side. Am I audible to all of you? हनी ट्रैप Yes, नागपुर sir. में भी हुआ था सर, वो Yes, डिफेंस फैक्ट्री में. Yes. अभी रिसेंटली भी एक केस हुआ है नागपुर में हनी ट्रैप का. करेक्ट. Anybody have any queries? Hello. Yes, sir. Yes. So once again, I am very much thankful to Dr. Priti Dharmik Madam for inviting me for presenting my thoughts on virtual media. And I'm very much thankful to all of you people for your kind and patient listening. Thank you all of you. Thank you. Wish Thank all you the so best much, for sir. your Once Thank you, again, sir. It was very from good all the session, sir. participants. Any Informative question, session from friends? No, madam. Okay. Sir, all the 4 sessions were wonderful. Thank you so much. I extend my sincere thanks to respected Dr. Kishore Dhole, sir, for sparing your valuable time and giving your insight about all the aspects of cyber security and its basic parts. Thank you so much, sir. Yeah. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Good day, sir. Thank you so much. Have a good day to all of you. Thank you, friends. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, friends. You can proceed for your lunch break. We have sufficient time for the next session. We will start our next session at 2 o'clock. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Yes. Thank you. Thank you so much, everyone. Okay, ma'am.